Yeah. So today we are going to cover transistor amplifying action. Sure. That is, whatever the transistor we are using, common base, common emitter, common collector, any configuration, how this transistor is amplifying my input signal, right? So for that, let's try to draw one transistor. Suppose this is my PNP transistor, suppose, right? So now, to understand the amplifying action, we need to consider some series resistances or input resistances which are very small, and some voltage which is to be applied, because we want to consider the amplifying action. Likewise, there is some output resistance like this. So this type of configuration is which configuration? Let's say this is common base or common emitter, common collector. Which Common configuration? emitter. Common emitter. Everybody agree? Sir, common base. Common base. देखो एक common base कह रहा है, common emitter कह रहा है. बताओ कौन सी है असल जी से? Common base. So Common base. सेंटर में base है ना? Base आपका input में आ रहा है. So this you need to remember, this is common base configuration. Okay, sir. Right. Now you all remember the input and output characteristics for common base. याद है? Yes, sir. तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपको याद है, regarding common base, what is the input resistance? If I ask you, and what is the output resistance? अब बोलोगे सर वो तो आपने बताया नहीं हमें. हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसमें क्या था, एक तरफ करंट था, एक तरफ वोल्टेज थी, है ना? तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बताओ शाबाश. V by I. V by I. Yes, sir. So for your recap, let me show you the characteristics also. ये पढ़े थे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट टाइम. Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे क्या है, वोल्टेज, ऊपर क्या है, करंट. Current. Right. So now can you tell me what is the value of resistance for this input resistance, if I write Ri? Approximately. कम होगी, ज्यादा होगी? चलो ये बताओ. तो कम होगी. कम होगी. Why? देखो यहाँ पर अगर मैं ज्यादा सपोज इसमें. पॉइंट पे लेता हूँ, सपोज को let's say पॉइंट पे बात करते हैं. If I go up point it and let's say VCB is 1 volt, तो correspondingly यहाँ पर कितना आ गया? Say let's say 4.6, suppose roughly, है ना? So for this particular case, it will be 0.8 volts divided with 4.6 milliampere. निकालो शाबाश, कितना आता है फटाफट बताओ. सॉल्व करो. ये आ जाएगा 8 into 10⁻³ divided with 46. 8000 upon 46 निकालो. रफली कितना आएगा? 20 और 20 के आसपास आएगा, 22 23 के आसपास. कितना आ रहा है बताओ शाबाश? 17. 17 आ रहा है. 17 कुछ आ रहा है सर. 17 ohms. किलो ओम सर, क्योंकि मिली एम्पियर में वो करंट. कौन बोला किलो ohms? ओम आएगा सर. ऊपर में 10⁻³ Sir, विनीत बोला किलो ohms. कितना आया? भाई सुन गया. 17 ohms, है ना? ओम्स में आएगा. So it means जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस है for this particular case is approximately of the order of 17 ohms. It's very very small. Now let me talk about the other output characteristics. Let me take that also. Now you tell me for this case what is the output resistance R0. Again take any value. Suppose आप 10 volts ले रहे हो. 10 volts के ऊपर if you go up straight way, let's talk about input current is 7 milliampere, output 7 आ रही है, तो कितना आ गया? 10 volts. करंट कितना है? 7 milliampere. कितना आ गया बताओ? Roughly 1.4 kilo ohms. Got it? ये समझ में आया को नहीं आया? यस सर, आ गया. हाँ. तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने ये निकाला है इसका मतलब क्या है. आउटपुट रेजिस्टेंस निकाली है, एक हमने निकाला है इनपुट रेजिस्टेंस निकाली है. इसकी मैं आपको रेंज बताता हूँ. पहले तो रेंज कौन सी होती है इनपुट रेजिस्टेंस की फॉर कॉमन बेस? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ohms that varies from 10 to 100 ohms. This I am talking about specifically for common base.
Likewise, if I talk about the output characteristics, it varies from 50 kilo ohm to 1 mega ohm or more than that also. कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाई होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास लो होती है। अब ये चीज हमें कहां चाहिए? दिस थिंग इज रिक्वायर्ड हियर, that is this output resistance and whatever the input resistance for a particular configuration is different. यहां पर इनपुट लो है, आउटपुट हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट रेजिस्टेंस लो और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ट्रांजिस्टर है एक ऐसा डिवाइस है जो मेरा लोअर इनपुट रेजिस्टेंस को हायर आउटपुट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। Well, this is the concept that I'm trying to build in your mind. So it is doing what? It is doing transfer of my resistance. So that is the way its name is transistor, because it transfer resistance. resistor. तो हम जरा लिखते हैं ये मेरा वर्ड ट्रांसफर का आ गया ट्रांस, और यहां से हम बोलते हैं सर रजिस्टर, तो ये यहाँ सॉरी ये तो रजिस्टर। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पर हमने इनपुट रेजिस्टेंस लो दिया और आउटपुट रेजिस्टेंस हमें हाई मिल रही है, तो बस सर हमें तो जो बट सर जो हमें जो फिर जो मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगी उसकी तो मतलब वो तो कम होगी ना इनपुट से वोल्टेज, तो सर वो एम्पलीफाई क्या हुआ? अभी हमने एम्पलीफाइंग की तो बात नहीं करी, मैंने बोला एम्पलीफाई अभी तो कुछ नहीं सर वो अभी तो मैं एम्पलीफाई सिर्फ ट्रांजिस्टर का मतलब समझा रहा हूँ आपको। ओके सर, अभी एम्पलीफाइंग के पर आना है, अभी मैंने जस्ट होल्ड इन फॉर अ मोमेंट। हाँ सर एक डाउट था अभी। हाँ पूछो डाउट पूछो शाबाश। टाइम टेबल पे ना एक जो लिंक था, जब मैंने उससे क्लास ज्वाइन करी तब वो 3rd ईयर में पहुंच गया, और वो भी ECED 12 था। उसमें क्या था? सर वो टाइम पे नहीं किया होगा ना ज्वाइन, मतलब पहले कर लिया होगा। नहीं नहीं सर, टाइम टेबल पे एक जूम का लिंक दिया हुआ था जहाँ पे सेम जो है वो ECED 12 था, तो हमने वो ज्वाइन किया, हम 3rd ईयर में पहुंच गए। किस टाइम किया था ज्वाइन? ये यही टाइम पे सर, अभी 2 मिनट पहले मैं आपके सामने अभी मैं ECED 12 यूज कर रहा हूँ सर। पता हर नहीं बार उसमें- क्लास के लिए नहीं होता है, जो टाइम टेबल पे लिंक है अगर उससे क्लिक करके जाओ तो हमेशा किसी और क्लास में पहुंच जाते हैं। आप एक काम किया करो, जो वेबसाइट पे दे रखा ना आपको कोर्स की वेबसाइट वाला, वो उठाया करो, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। So now let's come to the point here for understanding the amplifying. अभी तो मैंने बताया कि ट्रांसफर रजिस्टर करता है, तो इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर पड़ गया। अब इसकी बात करेंगे कि एम्पलीफाइंग एक्शन कैसे कर रहा है, राइट? सो फॉर दैट लेट्स से यहाँ पर हम इनपुट लगा रहे हैं 200 मिलीवोल्ट की, सपोज हमने इनपुट रेजिस्टेंस देखनी है यहाँ से, आउटपुट रेजिस्टेंस देखनी है इस साइड से जो ये ऑफर कर रहा है ना। तो लेट्स से यहाँ पर जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस है फॉर द टाइमिंग, लेट्स अज्यूम इट टू बी 20 ohms सपोज, and let's take output resistance of the order of, let me take the same example यहाँ पर लिया हुआ है of 100 kilo ohms। मैंने क्या लिया, अभी हमने देखा था कि जो common base characteristics है हमारे पास, based upon that common base input and output characteristics, we have computed that the input resistance is very small and the output resistance is very high. So for understanding the transistor amplifying action, we have taken one fixed value. Let's assume it to be Ri as 20 ohms and R naught as 100 kilo ohms. Right now, if I am applying a 200 millivolts as an input, can you tell me what will be the input current? बताओ शाबाश। Input current कितना होगा? That is input voltage divided with input resistance, है ना? Input voltage कितनी है मेरे पास? 200 millivolt. And input resistance कितनी है? 20. तो कितना आ गया मेरे पास? It's coming out to be 100 नहीं 10 मिलीएम्पियर। क्या मिलीएम्पियर, सॉरी सिंपल एक जीरो काटने में भी गलती कर रहे हो। 0.01 Now this is what my input करंट। अभी PNP ट्रांजिस्टर है, इसका सिंबल कैसा होगा? एरो कहाँ लगाऊं? अंदर को बाहर? अंदर को होगा ऐसे? यस सर। तो ये PNP आ गया आपके पास। अब Yes, देखो sir. ध्यान से, एमीटर कहाँ पर है? अंदर। तो बेस करंट कहाँ जाएगा? बाहर की, सर एंड पे, और कलेक्टर दोनों बाहर। सर बाहर Yes. बाहर। अब सेम चीज यहाँ बना दो। यहाँ एमीटर है, एमीटर करंट इज इनकमिंग, ये बाहर जा रहा है,
ये बाहर जा रहा है। कभी भी किसी भी सर्किट में आपने करंट की डायरेक्शन बनानी है, सबसे पहले सिंबल बनाओ ट्रांजिस्टर का, कौन सा ट्रांजिस्टर है उसका एरो देखो, वहां पर एमिटर बेस कलेक्टर बना दो, उसके अकॉर्डिंग वहां बना दो सर्किट के अंदर। क्लियर है? नाउ हमने एक चीज लास्ट टाइम पढ़ी थी कि अल्फा पढ़ा था करंट गेन, अल्फा डीसी, इसको मैंने दिखाया था। क्या दिखाया था मैंने? आईसी अपॉन IB आई, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, है ना? और ये बताया इसकी रेंज कितनी होती है? इट इज ऑफ द ऑर्डर 0.92 to 0.99 0.99 और अप्रोक्सीमेटली 1 से लेस होता है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट कि आपका अल्फा वैल्यू कौन सी है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 है, दैट इज आई ई इज इक्वल टू आई सी। यही मतलब हुआ? यस सर। अब अगर मेरा इनपुट करंट कौन सा है, वो क्या है? 10 मिली एम्पियर, एंड नाउ इट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड लेट्स से इट्स वैल्यू इज 5 किलो ओम। तो आपको आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलेगी? Sir, IC into 5 kilo. Yes, so it means my output voltage will be what? 5 kilo ohm into IC. IC कितना है? IC is equal to IE है। IE कितना है? मेरा इनपुट करंट के इक्वल है। इनपुट करंट कितना है मेरे पास? 10 मिली एम्पियर निकाला है। So that means into 10 मिली एम्पियर कितना आ गया? 50 volts. 50 volts. 50 volts। अब ये देखो चीज जो भी लड़का स्टूडेंट पूछा कि सर एम्पलीफाइंग कैसे हुआ? हमने इनपुट कितनी थी? 200 मिली वोल्ट की, आउटपुट कितनी मेरे को मिली? 50 वोल्ट्स की। तो बताओ ये एम्पलीफाइंग हुआ को नहीं हुआ? Yes, sir. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन दिस ट्रांजिस्टर इज प्रोवाइडिंग मी, तो कितना आएगा बताओ मुझे? Sir, 50 volts divided by input. millivolts. वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट विल बी द वोल्टेज गेन will be what? Output voltage divided with input voltage, है ना? Output voltage I am getting it to be 50 volts. Input is my 200 millivolt. So what is the output? बताओ कितना है? कंप्यूट करो शाबाश। कितना टाइम? 250. 250 sir, 250. 250। So it means क्या कि जो मेरा ये कॉमन बेस को अगर मैं यूज करता हूँ कन्फिगरेशन को, चाहे मैं एनपीएन यूज करूँ पीएनपी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉमन बेस में मैंने ट्रांजिस्टर लगाया रखा है तो मेरे को फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट वेयर आई एम फीडिंग जस्ट 200 millivolt as an input, I am getting 15 volts output. That means it is providing me a voltage gain of 250, but the current gain is always less than equal to 1. क्लियर होगी बात? तो Yes. एक तो चीज हमारा जो कॉमन बेस क्या कर रहा है, ट्रांसफर रेजिस्टर कर रहा है, लोअर रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में लेके जा रहा है, और दूसरा आपका वोल्टेज गेन से है वो ज्यादा है in comparison to the current gain. Now my another point to be discussed here is that जो आपका ये कॉमन बेस कन्फिगरेशन हम कहते हैं कि लो इनपुट रेजिस्टेंस और हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। Now can anybody of you tell me that without looking into the circuit characteristics, मैं को आपको characteristics नहीं दी मैंने, ना इनपुट की दी ना आउटपुट की दी है। Now how you will justify this point कि ये सही है पॉइंट ही गलत है, कि why the input circuit is having a low resistance? जो मैं characteristics plot किया, हाँ बोलो बोलो सर, रिपीट कर दो पॉइंट आपने जो बोला। ये है कि we have taken one point that कि the input resistance is low and the output resistance is high. कहां से लिया था? From the VI characteristics, है ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा इसका क्यों होता आंसर है? ओम्स लॉ से जाएगा। कैसे जाएगा? इनपुट इसका आंसर ओम्स लॉ से। समझाओ समझाओ मुझे क्या पॉइंट है, शाबाश। इनपुट ओम्स लॉ जैसे कि वोल्टेज जब बढ़ेगा वहां पे तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि V is directly proportional to R। ओम्स लॉ नहीं से नहीं V नहीं इक्वल्स टू नहीं IR नहीं होता है। नहीं, कुछ और बताओ कोई और। सर, इनपुट रेजिस्टेंस लो होगा तो इनपुट करंट हाई होगा। नहीं, इनपुट रेजिस्टेंस लो क्यों होगा? क्वेश्चन मेरा ये है। सर वोल्टेज लो है इसीलिए। नहीं सर फॉरवर्ड बायस है। एग्जैक्टली, ये कौन बोला? सर अर्शदीप सिंह। Arshdeep Singh very correctly pointed out because my input junction is forward biased. तो हमने क्या बोला था? अगर forward bias किया इसका मतलब क्या हुआ? The majority class carriers will rush to the
बेस विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वहां पर जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बहुत ही नैरो है, इट मींस इट इज ऑफरिंग वेरी लेस रेजिस्टेंस. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी लुक एट द आउटपुट जंक्शन, इट इज रिवर्स बायस्ड. So we have kept intentionally reverse bias voltage also to much higher value, so that the depletion region width will be higher. It means it is offering the higher resistance. So you always Sir? need to keep this in mind. Wait, that in my common base configuration, when I'm using a transistor as an amplifier, so what we do, we do input junction forward bias and output junction reverse bias. So Sir? this is the point. Wait just a minute, beta. This is the point that this results in my lower the input impedance, and the output resistance for reverse bias means it is higher or it is increasing by output resistance. Now you can ask, क्या पूछ रहे हो? सर इफ यू डोंट माइंड सर, आप एक बार वापस रिपीट कर देंगे सर. एक्चुअली मेरा नेट अचानक से चला गया था सर. क्या सर चीज लो repeat यहाँ करो, बच्चे पर बताओ. सर आप ये जो बता रहे थे कि लो इनपुट रेजिस्टर्स और हाँ. हाई आउटपुट रेजिस्टर के बारे में. See, हमने ये पूछा बच्चों से अभी कि जो आप कह रहे हो लो इनपुट रेजिस्टेंस होती है, ये तो हमें देखा कहाँ से, फ्रॉम द VI कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो आपको दिखाए थे अभी मैंने आउटपुट. Yes, sir. लेकिन अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, या मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑब्जर्व करना है, तो व्हाई दिस इज लो एंड व्हाई अदर वन इज हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो द रीजन उसके पीछे क्या है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर जब यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, फॉरवर्ड बायस, यस, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा फॉरवर्ड होता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इट मेक्स द डिप्लीशन रीजन नैरो, उसको नैरो कर देता है. यस है ना. सर. तो नैरो का मतलब क्या हो गया, लेस रेजिस्टेंस. और यहाँ पर क्या रिवर्स बायस किया तो इट मेक्स द डिप्लीशन रीजन वाइडेंस. तो वाइडेंस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, हायर रेजिस्टेंस. मोर हाई रेजिस्टेंस. यस सर. गॉट इट. तो अब आपके माइंड Yes, में sir. क्लियर होगा, यस, ये ट्रांजिस्टर मेरा वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है इन कॉमन बेस यस कॉन्फ़िगरेशन, सर. करंट गेन ऑलमोस्ट यूनिटी है या उससे कम है, और मेरी ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस. यस सर. इसमें यहाँ तक किसी कोई भी डाउट, प्लीज आस्क मी. नो सर. Okay, if this thing is clear, let's now go ahead with the next configuration. Next कौन सी थी हमारे पास? Common emitter. एमीटर. ये जो configuration है, ये बहुत ही काम की configuration होती है. It is mostly used common emitter configuration. इसको हम बोलते हैं CE configurations. अब इसमें क्या होता है देखो जरा. Let me draw the symbol. तो हमने ये बनाया था लास्ट टाइम भी कि अगर कॉमन एमिटर है तो ये जो एमिटर है ये हमारा इनपुट और आउटपुट के कॉमन होगा, राइट. ये हमारा बेस है, ये हमारा वेक्टर है, एंड दिस इज विच ट्रांजिस्टर, एन सर एनपीएन. राइट. तो अब एमिटर कहां पर है, बाहर, तो पहले तो ग्राउंड बनाओ सबसे पहले, तो बाकी दोनों इन्वर्ट कर दो, आईसी और आईबी. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने देखा कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या होगी, V B E, बेस और मीटर के बीच में, है ना. और आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, V C CE. कलेक्टर है और यहाँ पर एमिटर है. एमीटर. यस सर. अब इसमें अगर मैं आपको वो जो हमने इक्वेशन लिखी थी, कौन सी इक्वेशन लिखी थी हमने आईसी की, वो क्या लिखी थी बताओ. आईसी वाज रिटन एज अल्फा टाइम्स अल्फा डीसी आई E प्लस आईसी. आईसीओ या आईसीबीओ लिखा था हमने. यस सर. ये लिखा था लास्ट टाइम हमने. यस सर. अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये जो आपका आईबी है, इस आईबी को रिप्लेस करो. किससे रिप्लेस करोगे, अब यहाँ पर आईबी क्यों किया था, बिकॉज एट दैट टाइम वेयर वाज योर आईबी, लोअर साइड. यहाँ पर क्या Yes, sir. अल्फा सर आई. So now for this particular case, it will not be alpha IB, it will be IE. and और यहाँ पर भी ICBO क्या CE. CEO. यहाँ E हो जाएगा और यहाँ पर भी E हो जाएगा. Why? Because now we're talking about the common emitter configuration. Yes sir. अब यहाँ पर गया कि जो ICEO है इसको हम क्या बोलेंगे, शाबाश नाम बताओ. Collector to emitter with open open base. Yes, with base open. ये हमारा क्यों आ रहा है ICEO? Why it is coming? Minority charge. Yes sir. Right. और ये हमारा अल्फा आई आ रहा है, that is कि आप जब इनपुट जो दे रहे हो मेजॉरिटी करंट आ रहा है, आई मिल रहा है आपको आउटपुट के ऊपर, तो आपका ये मिल जाएगा. हाँ जी बोलो सर. ये दोबारा बता दो ये क्वेश्चन कैसे है आईसी वाली.
ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन लगाई थी हमने अल्फा उसकी वाली जो हमने किया था कॉमन बेस। कॉमन बेस में लिखा था ना हमने, देखो कॉमन बेस लिखा था IC इक्वल टू अल्फा IB यस सर प्लस ICBO लिखा था, ये लिखा था ना। यस यस सर सर यस सर Yes, अब sir. यहाँ पर क्या कर दिया, ये कॉमन बेस की थी, अब कॉमन मीटर में क्या कर दिया हमने, यहाँ पर इसको ई से रिप्लेस कर दिया बी की जगह ई आ जाएगा। बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो आपका IE होता है, IE किसके इक्वल होता है, बोलो IB IB प्लस IB plus IB IC। प्लस IC ठीक है, तो अब मैं ये यहाँ पुट दूँ, देखो अल्फा टाइम्स IB प्लस प्लस IC IC IC। प्लस ICEO। हम्म, अभी फॉर द टाइमिंग मैं लेके चला इसको ICBOE, देन आई विल लेटर ऑन चेंज इट टू CEO। अभी BOE लिख देता हूँ, अभी बताता हूँ उसका रीजन क्या है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। जो आपका ये चीज आई है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है, IC को एक टर्म ले जाओ और लेट मी ओपन इट, IC अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICBO। CO. नाउ IC टर्म्स इकट्ठी करो तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस, सर हाँ जी बोलो, हाँ सर यही स्लाइड कह रहा था मैं, पिछली स्लाइड कर दो एक बार सर। हाँ ये लो, ओके सर। राइट। सो अब ये आ गया आपके पास, अब इसमें से IC निकाल लो। IC कितना हो गया, अल्फा IB अपॉन 1 माइनस अल्फा हाँ प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस वन अल्फा। माइनस अल्फा। इतना आ गया सबका। अभी अल्फा क्या है मेरे पास, व्हाट इज अल्फा, IC by IE। अल्फा गेन है हमारे पास, यस सर। हाँ। कौन सा गेन है, करंट गेन। करंट गेन कौन सी है कन्फिगरेशन का, कॉमन एमीटर का, कॉमन बेस बेस का है बेस बच्चे, अल्फा ओके इज फॉर सर। कॉमन बेस। ओके सर। ठीक है, अब इसमें देखो जो आपकी टर्म आ गई ना अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो क्या बन जाएगा, IC इज इक्वल टू बीटा IB बीटा IB प्लस, now this term entire term is written as बीटा अपॉन ICEO। अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा नहीं नहीं, अब मैं लिखूंगा IC, और वो तो उसमें कर सकते हो आप, ICO is equal to what, ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये देखो ध्यान से, मेरा ये आउटपुट करंट है, अगर लीकेज करंट ना होता, मेरे पास ये टर्म ना होती, तो क्या होता, IC is equal to बीटा IB। तो बीटा क्या होगा मेरे पास, IC अपॉन IB अंडर द कंडीशन ICEO is 0। सर दोबारा से बता दो एक बार। ये इक्वेशन है बच्चे, इस इक्वेशन में अगर मैं मान लो फॉर टाइमिंग ICO हमारा 0 है, सपोज कि मैंने एक ऐसे बनाया जिसमें माइनॉरिटी करंट बहुत नेग्लिजिबल है, मैंने उसको 0 मान लिया, तो बीटा क्या आएगा, IC अपॉन IB। यस सर। राइट, अभी जो आपका बीटा है IC अपॉन IB, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। यस, करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दोनों बोल सकते हो। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर विच कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कॉमन एमिटर। हम तो अब आपने एक चीज ध्यान रखी, तो अल्फा लिखा था हमने, क्या लिखा था, फॉर करंट गेन फॉर कॉमन बेस, तो बीटा क्या हो जाएगा, सर फॉर कॉमन एमीटर, करंट गेन फॉर कॉमन कॉमन। एमीटर। तो अब ये जो टर्म्स है ना, आपको बता रहा हूं अल्फा बीटा, ये टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। इन योर एग्जाम्स यू माइट बी गिवन दैट द करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर इज दिस, तो आप ये मत बोलो कि अल्फा को बीटा है। बाय डिफॉल्ट अगर लिखा हुआ कि कॉमन एमिटर का करंट गेन है, तो वो कौन सा है, बीटा है। अगर लिखा हुआ करंट गेन ऑफ कॉमन बेस, तो वो हमारा अल्फा है। अल्फा है। तो आपने ये चीज जाननी है, जनरली क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पूछते हैं, में पूछते हैं जनरली, कि मान लो आपको कॉमन बेस का अल्फा गिवन है, तो बीटा निकालो, या बीटा पता तो अल्फा निकालो। राइट, तो इस तरह से आप स्विच ओवर भी कर लेते हैं आराम से। इतना क्लियर हुआ को नहीं हुआ? यस सर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉमन एमिटर। जस्ट होल्ड ऑन, या दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, कॉमन
एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब यहाँ पर देखो क्या फर्क है, उसी टाइप का मिल रहा है आपको जो आपको कॉमन बेस में था, लेकिन फर्क है इसमें देखो ध्यान से, क्या चीज ऑब्जर्व करो। इफ आई शो यू अगेन द कॉमन बेस, ये हमारा कॉमन बेस का था, फर्क क्या यहाँ पर आई था, ये वीबी था, ग्राफ ऐसे जा रहा था फॉर वीसी 1 10 20 वोल्ट्स। अब क्या है हमारा फॉर कॉमन मीटर, देखो फर्क क्या आया, इनपुट करंट हमारा आईपी है, इनपुट वोल्टेज वीबी है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 20 10 1। कुछ फर्क लगा आपको पहले वाले से? सर इसमें वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। इसमें अगर मैं रिवर्स वोल्टेज को कम कर रहा हूं तो आप जल्दी कनेक्शन कर पा रहे हो। यस सर। और क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इनपुट करंट देख रहे हो किस में आ रहा है, माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर्स में, और वहां पर किसमें था हमारे पास, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर्स में, देख रहे हो। नाउ इफ आई आस्क यू दैट, ये हमारा इनपुट कैसे आ गया, अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पर कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इनपुट रेजिस्टेंस फॉर कॉमन एमीटर, हाई, क्या करोगे, फिर से वही हाई काम होगी करो, हाई होगी सर, हाई टू लो, निकालो कितनी होगी। चलो लेट्स टेक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.8 आपने ये लिया और कॉरस्पॉन्ड टू दिस आपको मिला लेट्स से 50 माइक्रोएम्पियर, तो कितने आई रेजिस्टेंस, 0.8 डिवाइडेड विद 50 माइक्रोएम्पियर्स। तो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है यार, पहले वाले में डिनोमिनेटर में मिली एम्पियर आ रहा था, अब माइक्रो एम्पियर आ रहा है, सो 1000 टाइम्स ज्यादा आ रही है उससे, है ना। तो अब ये कितने आएगा निकालूंगा अगर मैं, कितने आएगा, शाबाश, 0.8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड विद 50, 2 0 रह गया, 4 रह गया, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलो ओम्स। हाँ यस सर, इतना ही आ रहा, अप्रोक्सीमेट है ना। सो 116 किलो ओम्स आ गया, इट मींस जो इनपुट रेजिस्टेंस है ऑफ कॉमन एमिटर इज गोइंग टू बी हायर, वेरी मच हायर देन द कॉमन बेस। तो ये तो आपको पहली चीज समझ में होगी कि कॉमन बेस से कॉमन एमिटर में गया तो एकदम क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस मेरी बढ़ गई। रीजन मैं बाद में पूछूंगा आपसे, अभी आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख रहे हो इसके अंदर, रीजन आप मेरे को बताओगे ग्रुप के अभी। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। These are the output characteristics of common emitter. इसमें क्या डिफरेंस देखो जरा, यहां पर आईसी मिली एम्पियर्स में, वहां भी आईसी मिली एम्पियर्स में था, वीसी ही है, ठीक है, फर्क क्या है इसमें देखो जरा। लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस वन ताकि आपको कंपेयर देख कर लो। इसमें सैचुरेशन थोड़ा लेट आ रहा है। हाँ यहाँ पर देखो, इसमें क्या चल रहा था, यहाँ पर आईसी मिली एम्पियर में था, वीसीबी इनपुट्स में था, यहाँ से आप एमिटर करंट बढ़ा रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग आपको कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा था, और ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, 7 पे 7 6 पे 6 5 पे 5 4 पे 4, है ना। अब मैं उस पे आता हूँ वापस, इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से तो आपका करंट बढ़ रहा है ना, ये कौन सा करंट है मेरा, इनपुट करंट आईबी। तो जैसे जैसे बेस करंट बढ़ा रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आईसी क्या बढ़ रहा है, यस सर, यस और नो, यस सर, बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, क्या वो कांस्टेंट रह रहा है, नहीं, ये लीनियरली एक लाइन बन रही है ऊपर, देख रहे हो, 90 माइक्रो एम्पीयर का चेक करूं तो ये ऑलमोस्ट ऐसी लाइन ये हो जाएगी, देखो ये थोड़ा सा नीचे को आ है रहा ना। है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे मेरा इनपुट करंट बढ़ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट मेरा आईसी भी लीनियरली काफी बढ़ रहा है, सेम नहीं रह रहा। देखो 90 माइक्रो एम्पीयर पे यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली व्हाट 6 मिली एम्पीयर करंट। तो अब यहां पर क्या होगा, इसमें अगर मैं बात करूं व्हाट इज आउटपुट रेजिस्टेंस, बताओ शाबाश, सर कम होगी आउटपुट रेजिस्टेंस में, आप बताओ। लेट्स टेक एग्जांपल, अगेन 10 वोल्ट ले लेते हैं जो पहले लिया था हमने, है ना। सो 10 वोल्ट्स पे जाके लेट्स से इस पे टच करते हैं, यहाँ पर कितना करंट आ रहा है, लेट्स से 5.2 मिली एम्पियर सपोज, तो निकालो कितनी आती है,
10 volts divided with 5.2 milliampere. So 10 into 1000 divided with approximately 50 कर लो. Let's say 5.0 लेते हैं, ठीक है? तो कितना आ गया? 200 ohms. Likewise, if I take the lower value, और लोअर हो जाएगी. तो अब इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, हायर है तो लोअर है? आउटपुट रेजिस्टेंस तो कम हो, ऐसा हाई है ना? हाई है? हाँ. कैसे हाई है बताओ? लेट्स टेक अनदर केस. 15 में बताओ. 15 वोल्ट्स पे लेट्स टॉक अबाउट I V is equal to 0 माइक्रोएम्पियर पे कितना करंट आ रहा है? लेट्स से दिस वन 0.5 मिलीएम्पियर. तो कितनी रेजिस्टेंस आ गई? 15 वोल्ट्स डिवाइडेड विद 0.5 कितना आ गया? 3K आ गई. यस सर. हाँ? तो एक्सट्रीम वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ रही है. अब आप पीछे आए तो 5 पे आए तो सपोज करो इफ आई टॉक अबाउट 5 पे ये मेरा वो है IB. यहां पर खींचूंगा यहाँ अप्रोक्सीमेटली 0.4 के बाद आ जाएगा. तो 5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 0.4 मिलीएम्पियर कितना आ जाएगा? 12.5 के. यस सर. चेक करो ठीक बोला मैंने? सर ऊपर वाला 30 के आएगा. आप बताओ, मैं तो लिख रहा हूँ. 30 के आएगा. हाँ सर. यस सर. और एग्री विद बोला करो ना, बोलना है आपने. ठीक है, बिल्कुल 30 के आएगा. एटलीस्ट पॉइंट इट आउट. तो यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास हायर ही है. ओके. तो फर्क क्या आ गया कि जो हमारा कॉमन बेस है उसमें इनपुट रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है. लेकिन कॉमन एमिटर में इनपुट भी हायर है, आउटपुट भी हायर है. और आपने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर कि इन योर दिस पर्टिकुलर सर्किट जो आपका गेन है बीटा वो कितना होता है? IC अपॉन IB. ये लिखा है देखो हमने पीछे. ये वाला देखो, ये निकालना बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB. अब यहीं से आपको देख के नजर आ कि जो हमारा बीटा है वो 1 से कम होगा क्या? ये ज्यादा होगा? बहुत 1 से तो कम, बहुत ज्यादा होगा 1 से. रीजन बीइंग क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? बेस करंट, राइट? और बेस करंट किसमें होता है? माइक्रोएम्पियर्स में. IC मिलीएम्पियर में होता है. अगर दोनों 1 ओनली मान लूं तो 1 मिलीएम्पियर अपॉन 1 माइक्रोएम्पियर लगा दूं सपोज करो तो कितना आ जाएगा? 1000. तो वैसे नहीं मिल रहा बीटा आपको. तो इट मींस this common emitter amplifier is a very good for the current amplification. एक चीज नोट करो, करंट एम्प्लीफिकेशन के लिए जो है आपका कॉमन एमिटर इज अ गुड चॉइस, राइट? अब ये तो क्वेश्चन हो गया हमने जो बीटा निकाला. अब बीटा कौन सा होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है. एक होता है बीटा DC, एक होता है बीटा AC. दोनों में क्या फर्क होता है बताओ? बीटा DC ऐसे नाम लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? फॉर द DC इनपुट. यस सर. और बीटा AC फॉर द AC इनपुट, है ना? तो अब जब हम बीटा DC की बात करते हैं तो बीटा DC इज, लेट मी टेक अ सेपरेट पेज. बीटा DC इज IC अपॉन IB. बट इफ आई टॉक अबाउट बीटा AC, डेल्टा क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ IC अपॉन डेल्टा IB. सो क्या मतलब है? अगर मान लो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दूं, दिस वन, नहीं नेक्स्ट ये वाला. अब मैं कहूं कि कंप्यूट बीटा AC, तो आप क्या करोगे? ओके सर बीटा AC निकालना है, ठीक है. सो वी विल टेक लेट्स से 10 वोल्ट्स लिया मैंने, एक पॉइंट यहां काटा, एक पॉइंट यहां काटा, तो कॉरस्पॉन्ड टू दिस. तो आपको यहां पर डेल्टा लेना है और कॉरस्पॉन्ड टू यहां पर 2.5 एक दूसरा वोल्टेज लो. So it means we have to measure delta change in the IC to the change in IB. अब यहाँ पर IB देखो कितना है? 10 माइक्रोएम्पियर एंड दिस.
ओके सर। लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल, इससे याद ले होगा आपको। तो जब आप बीटा की वैल्यू वो 1000 लेके बता रहे थे, उसके बाद आपने यही बताया? बीटा क्या बता रहे थे? वो 1000 एग्जांपल ले रहे थे, उसके बाद आपने यही बताया? एक मिनट, मैंने ये बताया है, एक ये बताया। 1000 के बाद मैंने ये बताया ना बच्चे। इसके बाद वही बता रहे थे? इसके बाद ये बताया बीटा डीसी और बीटा एसी। ओके ओके सर, ओके ठीक है। तो लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, एक चीज बताओ, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था अल्फा और बीटा में रिलेशन। क्या लिखा था? अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 1 माइनस माइनस अल्फा। अल्फा। अब मुझे बताओ क्विकली अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा निकालो अपने आप। तो बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा। अरे भी अल्फा निकालना इन टर्म्स ऑफ ओनली बीटा, जैसे बीटा ऑल इन टर्म्स ऑफ अल्फा है ना सर बीटा अपॉन सर 1 बीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। वेरी गुड। ऑल एग्री विद दिस और नॉट? और कुछ और आ रहा है किसी का? सर यही है, यही आएगा सर। यही आएगा ओके वेरी गुड। और हमने लिखा था ICEO इज इक्वल टू, क्या लिखा था? ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब 1 प्लस बीटा हो जाएगा। नाउ कैन वी राइट इन टर्म्स ऑफ बीटा? सर बताओ। This expression I want in terms of some beta into ICBO. सर अल्फा इनटू ICBO। अल्फा तो ऑलरेडी है बच्चे डिनोमिनेटर में अल्फा। I want to replace 1 upon 1 minus alpha with beta. अच्छा बीटा इनटू ICBO। Yes. ICEO will be equal to what? Beta times ICBO. तो इसको आपने एक चीज दिमाग में रखो, और क्या कि जब मैं कॉमन बेस से कॉमन मीटर में जा रहा हूं तो क्या चीज चेंज हो रही है? पहली चीज चेंज हो रही है ये कि मेरी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, लेट मी टेक सेपरेट पेज ताकि आपको जो समरी बताऊं मैं। ये मेरा कॉमन बेस था, यहां पर मेरा कॉमन मीटर था। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हियर इनपुट रेजिस्टेंस इज लो, आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई, और यहां पर इनपुट इज हाई, आउटपुट इज आल्सो हाई। इसमें जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है इज अल्फा, और इसमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर is beta. Here the value of alpha is less than equal to 1. Here beta is always greater than 1. और क्या पॉइंट देखा आपने इसमें? सर इसमें ICBO है, इसमें ICEO है। ICEO है। इसके अंदर हमारे पास होता है IC is equal to alpha times IE, और इसमें क्या होता है? IC is equal to beta times IB। अब इस वाले केस में ये क्या था? I हमारा इनपुट करंट है ना, और इसमें क्या है? IB हमारा इनपुट करंट है, और IC तो हमारा दोनों में क्या है? आउटपुट करंट। तो इट मींस in both the configurations my IC is some gain into input current जनरल में, है ना। अब गेन उसमें अल्फा है, उसमें बीटा है। Similarly, if I try to relate ICEO with ICBO, this is also equal to beta times ICBO. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं कॉमन बेस से कॉमन एमिटर में शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरा गेन नो डाउट काफी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ मेरा लीकेज करंट भी बढ़ रहा है देन द कॉमन बेस। अरे लाइन रिपीट कर दो एक बार। आई एम सेइंग in common, as we going from common base to common emitter, then my IC is increased, है ना, and along with that my ICO is also increased, लीकेज करंट बढ़ रहा है, और किस फैक्टर से बढ़ रहा है? दोनों बीटा से बढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप। और बीटा क्या है? ICO इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ, ICEO क्या है? ICO is equal to ICBO into बीटा, और उसमें कौन है? इसमें मेरे पास लीकेज करंट क्या था? सिर्फ ICBO था। यहां पर लीकेज करंट बीटा टाइम्स बढ़ गया उसके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर।
Right now, if I want to have a relation between IC and IE, can you give me a relation? मुझे पता है IC is equal to beta IB होता है, but I want a relation of IC with IE. तो क्या करूं? बीटा Replace IB with what? बोलो. सर IC upon beta. नहीं. minus IC. IB मेरे को रिलेशन किसमें चाहिए? सिर्फ IC और IE के बीच में, है ना? तो I can write IB as what? IE minus IC. कर दो इसको पुट, तो क्या आ जाएगा? We will get IC is equal to beta IE plus beta IC, sorry minus. ये इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? IC is equal to IE upon 1 plus beta. IC is equal to IE upon Sir, 1 plus beta. हाँ बोलो. सर ये 5th पॉइंट दोबारा समझा दो, मैं क्लास के बाहर ही पहुंच गया था. See, जो आपका ये 5th वाला पॉइंट है, हमने कहा IC is output current which is equal to beta times IB. ये हमने निकाला था कि जस्ट मैं आपको समझ बता रहा हूँ पहले जो पढ़ा है. तो बीटा IB आ गया. अब हमने कहा कि जब हम कॉमन बेस से कॉमन मीटर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो करंट गेन है वो बढ़ रहा है ना? वो क्या हो रहा है? बीटा टाइम्स और इनपुट करंट के. Likewise, our leakage current is also enhanced by factor of beta in comparison to my common base configuration. Right? तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? We are trying to found a relation between IC and IE. Let me take one step. हम क्या करें? हमने लिखा IC is equal to beta IB, तो लिख दिया. ये किसके बीच में? IC और IB के बीच में है. But if I want relation of IC, some constant जो भी टर्म है into IE, वो निकाल रहे हैं हमने. फिर हमने निकालना है अगर IE निकालना है in terms of IB, वो निकालो. तो यहाँ पर क्या IC करोगे? is equal to alpha IE होगा. कौन सा वाला बच्चा है? IC is equal to Alpha IE. no, we want relation in terms of only betas. ये हम कॉमन मीटर की बात कर रहे हैं खाली, तो we want only in terms of beta. बताओ शाबाश, क्या होगा? I want this relation, I want this relation. बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. जी. कौन से इसमें? यस सर. यस सर. Beta upon 1 plus beta. all agree with this? Sir. And what about the lower one? IE. Alpha upon 1 minus alpha. Alpha minus 1 आएगा minus beta की alpha. टर्म्स में, beta की टर्म्स में. Only beta. Only beta? फिर और बीटा ही आएगा. Yes sir. नहीं. No. क्यों? See, IC is equal to beta IB है. IE is equal to beta IB कैसे हो जाएगा फिर? Oh sorry. डिवाइड दिया आपने. Sorry. सोचो शाबाश. IE की टर्म. Sir 1 plus beta. हाँ 1 plus 1 beta plus आएगा. beta IB. 1 plus प्लस beta बीटा आएगा. आएगा सर. सबसे पहले किस लड़की ने बोला भाई ये? लावण्य. क्या नाम है? लावण्य. हाँ, वेरी गुड बच्चे. तो ये आपने जो रिलेशंस हैं वो याद रखने हैं फॉर डूइंग योर ऑल न्यूमेरिकल्स. कौन कौन से रिलेशन है हमारे पास? एमीटर करंट का गेन कितना होता है? एमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ कलेक्टर करंट फॉर कॉमन एमीटर. लाइकवाइज कलेक्टर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट. सो जो भी रिलेशन आपको कहीं पर कोई भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन मान लो आपको गिवन हो कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं. लेट्स टेक वन क्वेश्चन. लेट्स टेक अ बुक. सर हाँ जी बोलो बोलो. सर बाकी कल कर ले सर, वो अगली क्लास भी है ट्यूटोरियल वाली. हुआ टाइम? यस सर. हाँ सर 3 मिनट बचे हैं. चलो ठीक है. बाकी इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी. मैं जो आपको ये फॉर्मूलास करवाए हैं सारे के सारे, ये जैसे एक बार रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे. सर ये लेक्चर सर रात तक सर अपलोड कर देना सर. रात तक नहीं, मैं करके जाऊंगा घर पे. ओके सर. देखना पड़ेगा वापस. हाँ कोई बात नहीं, आपके लिए रिकॉर्ड